Okay, so Aswani Sharma, right now we are going to start your snap of mathematics. Okay, And sir. before that, I just want your gate score, your branch, and Okay, from where did you get the interview calls? Tell me. okay, sir. Sir, my branch is civil engineering, and my gate score is 761. And I got call from IISc Bangalore in Department of Mathematics Science, Water Research, and Civil Engineering. Okay, okay. So now, first of all, you tell me, do you know about linear algebra? Comfortable with linear algebra matrices? Okay, sir. Okay, sir. So tell me, what is the meaning of basis of a vector space? Sir, What? I don't know. Vector space के बारे में नहीं पता है सर. No idea. No, sir. Okay. Uh, Eigenvalues, eigenvectors. Yes, sir. पता है सर. So note down a matrix. First row is -4, 6. Okay, sir. Second row is 5, -3. Okay, sir. Tell me what are the eigenvalues of this matrix. Wait, sir. Sir, I am unable to factorize that quadratic equation. Okay, so is to factorize quadratic equation very tough job. No, sir, but maybe some problem here. Wait. So Minus if you are 8. not able to factorize a quadratic equation, so Yes, sir. you cannot find the eigenvalues in that case. Sir, I can find the product and sum, but if I have to find the individual eigenvalue, then we have to solve the quadratic equation only. So solve. Wait, sir. Sir, -4, -3. Oh, sorry, -4, 6, and 5 and -3. This is the matrix now. -4 and 6. In first row we have -4, 6. पहले -4, 6. -4 है A11 और Yes, sir. A12 भी 6 है. देन सेकंड Yes. रो में A21 5 है और नेक्स्ट -3 है. Minus. सेकंड रो में 5 और -3. Lambda square plus 7 minus 30 of 32. Lambda square plus 7 minus 18 equal to 0. Plus 1 minus 1. 18. Okay, got it, sir. Lambda minus 2 lambda minus 6. So, sir, lambda is equal to 9. Wait, and lambda is equal to -2. Sorry, 9 and lambda is equal to, wait, sir. Lambda plus 9. Lambda is equal to -9 and lambda is equal to 2 are the -9 eigen. and 2. Yes, sir. Okay, -9 and 2. You are from civil engineering, na? Yes, sir. So can you tell me any one application of eigenvalues in your civil engineering? In civil engineering, या सिविल इंजीनियरिंग में कहीं यूज करते हो इनको eigenvalues को किसी भी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में कहीं पे? सर टॉपिक में तो नहीं करते, मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं बस आइजन वैल्यूज. मतलब बट ऐसे टेक्निकली ही, आप कहीं इसको कोई यूज नहीं करते अपने सब्जेक्ट में? नो सर, किसी भी सब्जेक्ट में आइजन वैल्यूज नहीं आता कभी.
मैट्रिक्स का भी यूज सिर्फ उसमें आता है सर, स्ट्रक्चर में, जब हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ही आता है बस। मैट्रिक्स कभी वैसे यूज नहीं करते कभी हम। ओके, अच्छा ये बताओ कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है ना, यस सर। सो वी हैव ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट डाउन x plus y minus z equal to 1. यस सर। X plus y minus z equal to 1. Then second equation is 2x minus y plus z equal to 3. सर एक बार रिपीट कर दोगे सर इक्वेशन पहली? First equation is x plus y minus z equal to 1. ओके सर। Second equation is 2x minus y plus z equal to 3. यस सर। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यस सर। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे? सर इसके तो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं सर इसके, क्योंकि क्या कहते हैं, तीन वेरिएबल है हमारे। क्या सर? हो सकते हैं या होंगे? वेट सर, सर दो वेरिएबल तीन है और इक्वेशन दो दे रखी है, तो सर पहली बात तो सॉल्व ही नहीं होगा सर, ये सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व नहीं कर सकते हम। तीन तीन इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए हमें। तो मतलब नो सॉल्यूशन इस सिस्टम का? नहीं सर, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये दो प्लेन होंगे, कट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। तो आप तो कह रहे हो सॉल्व ही नहीं होंगे। हम वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी अभी। वैल्यूज नहीं निकाल सकते? सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ इसका आंसर आपको। आपने तो बोला सिविल में यूज करते हो सिस्टम इक्वेशंस को। सर सिस्टम इक्वेशन को नहीं, बस एक एक यूज बस बताया गया है कि क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का मतलब वैसे यूज नहीं होता सिविल इंजीनियरिंग में जनरली। आगे एक फंक्शन नोट करें, एफ एक्स इक्वल टू -1/x-1। -1/x-1। या यस सर। न्यूमरेटर में -1 है और डिनोमिनेटर में x-1 है, ठीक है? यस यस सर। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप? यस सर। करें। x equal to 0, y equal to 1, x equal to 1, ये जा रहा है -∞। सर रफ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ऐसे ही? जो भी कर Just- सकते हो करके बताओ मुझे। हाँ, सर ऐसा कुछ बनेगा? दिखाना बनेगा, दिखाओ मुझे। दिख रहा है सर? ऊपर करो थोड़ा। सर 1 पे एसिम्पटोट आएगी इसकी नीचे की साइड -∞ पे, और 1 पे 0 आएगा। तो बाकी और मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इस ग्राफ को अलग अलग वैल्यू पे। कुछ और भी ऐड ऑन करना है इसमें? ऐड ऑन कर सकते हैं सर अलग अलग वैल्यूज पे। कर सकते हैं कि करके दिखाओ ना। कर तो बहुत कुछ सकते हैं। ग्राफ Yes, बनाओ और दिखाओ मुझे। ओके सर। फाइनल ग्राफ बताओ कि ये होगा। ठीक है सर। X equal to 1 here. सर ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा सर? सर हाफ पे वैल्यू आएगी इसकी, ऐसे 1 पे इसकी -∞ जाएगी वैल्यू, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो सर ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसका। ओके,
Now you tell me, do you know how to solve differential equations? Yes, sir. So note down one differential equation. Okay, sir. D square y upon dx square Yes, sir. minus 2 dy upon dx Yes, sir. minus 8y equal to 0. Okay, sir. ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ मुझे क्या होगा. Okay, sir. तो इसका सॉल्यूशन होगा c1 e to the power minus 2x plus c2 e की पावर 4x y is equal to c1 e की पावर minus 2x plus c2 e की पावर 4x. चलो ओके. नाउ ये बताइए कि ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन है. कितने ऑर्डर की है? सर 2 ऑर्डर की इक्वेशन है सर ये. और डिग्री डिग्री 1 है सर इसकी. लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर है सर ये. वेट, नॉन लीनियर है सर. नॉन लीनियर है. नॉन लीनियर. यस सर. क्यों? व्हाई? सर क्या कहते हैं dy बाई dx की टर्म क्या कहते हैं मतलब पहली बात तो ऑर्डर 2 हो गया इसका, तो लीनियर ऐसे ही नहीं हो गई है. सिर्फ एक बार इन डिफरेंशिएशन होना चाहिए. ठीक है सर, उसकी वजह से नहीं हो गई सर ये लीनियर. ओके. होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस है सर. क्यों? सर राइट साइड में 0. एक मिनट. पता नहीं सर होमोजीनियस के बारे में इसका. बाकी होमोजीनियस का होता है कांस्टेंट नहीं होता उसके अंदर. ओके. कैन यू टेल मी व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? डू यू नो अबाउट रैंडम वेरिएबल्स? रैंडम वेरिएबल्स सर वेरिएबल्स ही होते हैं रैंडमली जो भी चूज कर सकते हैं. ऐसे ज्यादा आइडिया नहीं है. जो रैंडम होंगे वो रैंडम वेरिएबल होंगे, राइट? नो सर, पता नहीं है सर. एक और इक्वेशन लिखो, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. यस सर. इसको ड्रा करके दिखाओ. ये कौन सा कर्व बनेगा इससे? किस कर्व की इक्वेशन है उसको प्लॉट करके दिखाओ. यस सर. सर एलिप्स बनेगा. मेजर एक्सिस जो होंगी सर इसकी 0,4 और -4,0 होंगी और माइनर एक्सिस जो होंगी. प्लॉट करो, दिखाओ. -3 अच्छा. इसकी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? लेटेस्ट रेक्टम प्लॉट करके दिखाओ. सर लेटेस्ट सेक्टर सिर्फ ड्रॉ करके दिखानी है. हाँ. सर फोकस से बस परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऊपर तक टच हो जाएंगी. कोऑर्डिनेट भी बताने हैं. कैसे डिफाइन करोगे लेटेस्ट रेक्टम को? डिफाइन करो जरा, क्या होती सर है? फोकस के परपेंडिकुलर होती है और कट करती है ग्राफ को. यस सर. फोकस के परपेंडिकुलर होती है और ग्राफ को कट करती है. फोकस के परपेंडिकुलर. यस सर. एंड ग्राफ को कट करती है. यस सर. चलो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आइडिया है आपको? थोड़ा बताओ सर. चलो लिखो, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई. कर्ल दोबारा से सर. स्क्वायर जेड कर्ल एक्स कर्ल वाई. अच्छा सर, डेल की बात कर रहे हो क्या सर? कर्ल मतलब डेल. डेल भी बोलते हैं, डेल बोल सकते हो. अच्छा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई. इक्वल टू एक्स माइनस वाई. या. यस सर. इसको सोल्व करके दिखाओ.
सर प्रॉपर मेथड नहीं पता है, बस मैंने ट्राई किया है। xy/2 मल्टीप्लाई x-y, xy/2 ब्रैकेट में x-y, xy/2 ब्रैकेट में x-y। ये क्या है? ये z की वैल्यू है, ओके, z इक्वल टू दिस, प्लस पक्का? c भी कर सकते हैं। ओके, y इक्वल टू मोड x प्लस 3 है, मोड x प्लस, प्लस 3 हाँ, और प्लस एक है 3, y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5, 5। यस सर, ये दोनों कर्व से कोई बाउंडेड रीजन बन रहा है क्या? देख रहा हूँ सर। एक तो y इक्वल टू मोड x प्लस हम्म, 3, ठीक है, मोड के बाहर में प्लस 3 है, बन रहा है सर, बन रहा है। तो उसका एरिया बताओ क्या होगा? यस सर, y इक्वल टू 5, x प्लस 3, x इक्वल टू 2, x सर इसका होगा हाफ इंटू 2 इंटू 4, सर 4 होना चाहिए, 4 4 4, यूनिट स्क्वायर। ओके, okay Aswani, your interview is over now, ओके सर, and let me provide you the feedback of your answers. यस सर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है, तो आप आईएससी में अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो प्लीज ये जो लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स है ना, वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस के बाद लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, रैंक नलिटी थ्योरम, ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करो। यस सर, इसके ऑलरेडी मैंने लेक्चर बना के अपने डाले हुए हैं, उस पे पैनल पे मिल जाएंगे आपको, क्लासेस भी मैंने इसके ओके सर, कंडक्ट किए हैं, तो क्लासेस को ठीक देखो है सर। उनको, ठीक है, और ये टॉपिक रेडी ठीक है करो वहाँ से, वो पूछ सकते हैं सर, ओके आप। सर। खाली अभी बेसिस की बात करें, वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस अपने आप में एक सेट है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया हुआ वहाँ पे कैसे क्या होता है। अब ठीक है उसका कोई भी सबसेट, any subset of vector space which is linearly independent, a subset of vector space which is linearly independent as well as spanning set of that vector space is said to be a basis of a vector space. ये डेफिनेशन है सिंपल, उसके लिए लेकिन आपको अगर समझना है तो पूरा लेक्चर सारे देखने पड़ेंगे एक बार, यस सर, ठीक है। देन आइगन वैल्यूज आपने कंप्यूट किया, तो इनिशियली तो आपने डिनाई कर दिया था, आपने एक तरीके से कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया अपना एकदम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना कोई बिग टास्क थोड़ी है, बट जब दोबारा आपसे कहा गया देन आपने आंसर किया, सो 2 - 9 इज द राइट आंसर, ओके, जो आपने दिया था दैट इज करेक्ट आंसर। यस सर। एप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इन सिविल इंजीनियरिंग, तो देखो वाइब्रेशन कोई सब्जेक्ट होता है आपका, वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हो कुछ? नहीं सर, वाइब्रेशन नहीं आता कहीं, मैकेनिक्स अलग से गेट के उसमें आ जाता है, हाँ, बाकी सिविल में वाइब्रेशन अर्थक्वेक में आ सकता है, बाकी अर्थक्वेक ऐसे होता बीटेक ही है में ना, पढ़ाते नहीं है। सिविल में तो यूज होता ही है, तो यस वाइब्रेशन सर, के एनालिसिस में यूज करते हैं आइगन वैल्यूज को हम, ठीक है सर। ठीक है, सिविल में, मैकेनिकल में, सभी जगह यूज होती हैं, तो उनके एप्लीकेशंस भी पढ़ो, ओके सर, ठीक है, और क्या क्या एप्लीकेशन है डिटेल में उनके बारे में जो तुम्हारे सब्जेक्ट में मिलते हैं उनको प्रिपेयर करो एक बार, ठीक है। ठीक है सर। देन आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने दिया था, तो वो भी आपको समझ में नहीं आया। यस सर, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं,
ठीक है। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं हम क्या, अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम। ये अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम है, लेस इक्वेशन देन अननोन्स, और Yes, sir. इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। आपको जब पता है कि ये प्लेन है, दो प्लेन है, Yes, sir. और आप दोनों प्लेन को देख सकते हो कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट्स Yes, sir. का रेशियो है वो सेम नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. नॉन पैरेलल प्लेन अगर होंगे तो वो डेफिनेटली कट करेंगे एक लाइन पे। Yes, sir. Yes, sir. लाइन पे कट Infinite. करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे लाइन पे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है तो सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। Yes, sir. उनमें से कोई भी निकालना चाहते हो सपोज आप, तो Yes, जेड sir. को 0 पुट कर लो, Yes, sir. जेड इक्वल टू 0 ले लो, एक्स Yes, वाई sir. में इक्वेशन आ जाएगी, उनको सोल्व Yes, कर sir. लो, एक Yes, पॉइंट sir. मिल जाएगा आपको। Yes, sir. जेड को 1 करके सोल्व कर सकते हो, जेड को 2 करके सोल्व कर सकते हो, Yes, या sir. एक्स को 0 लेके वाई और जेड को सोल्व कर सकते हो। सो Yes, यू sir. कैन सोल्व दिस एंड यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। Okay, sir. देन ग्राफ आपने बिल्कुल इनकरेक्ट प्लॉट किया। Okay, sir. fx इक्वल टू -1 अपॉन x -1 का मैंने ग्राफ पूछा था, तो वो प्रॉपर ग्राफ नहीं है। इसको आपको ग्राफ की प्रैक्टिस करो, सिविल से हो ना, Yes, sir. मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई ग्राफ आपसे पूछेंगे वो। Yes, sir. उसके लिए आपने जो भी पढ़ा हुआ है अपने तैयारी के टाइम पे गेट की, ठीक है। अभी Yes, मैं sir. तुम्हें एक ग्राफ समझा देता हूँ, ये वाला जो मैंने अभी पूछा तुमसे। Mhm. तो देखो सामने बोर्ड दिख रहा है, Mhm. Yes, sir. कौन सा ग्राफ मैंने पूछा आपसे, y इक्वल टू -1 upon 1 minus x. -1 अपॉन x -1, ठीक है। तो सबसे पहले 1 अपॉन x का ग्राफ हमें आना चाहिए, Sir, स्टैंडर्ड 1 ग्राफ minus होता है। x पूछा था sir. उसकी हेल्प से 1 अपॉन x -1 हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको fx मानेंगे तो ये fx -1 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग यूज करेंगे हम। और उसके बाद इसको बाहर पूरे पे माइनस लगा दिया हमने, तो फिर माइनस ऑफ fx -1, किसी फंक्शन के नेगेटिव का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये हम रूल यूज करेंगे। 1 अपॉन x का ग्राफ जो है हमारा, वो कैसा ग्राफ होता है जो हमें हमेशा याद रखना होता है। एक हाइपरबोला बनता है y इक्वल टू 1 अपॉन x, कुछ इस तरीके से Yes, sir. दिखता है ये, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है हमारा भी। अब अगर इसकी जगह ये बनाना है ना, तो जो चीज पहले ओरिजिन पे सिचुएशन बन रही थी ना, वो 1 पे बनेगी। अब ये 0 पे इंफिनिटी पे टच कर रहा था ना इसको, वो कहाँ पे करेगा, 1 पे। तो आप क्या करो, इसको 1 लिख दो यहाँ पे, x इक्वल टू 1 इसी को लिख दो कि ये लाइन x इक्वल टू 1 है। क्लियर? Yes, sir. अब अगर x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, 1 अपॉन x -1 का ग्राफ हो गया। अब Yes, हमें sir. क्या करना है, अब हमें इसका नेगेटिव लेना है, नेगेटिव। तो किसी फंक्शन का नेगेटिव कैसे लिया जाता है, उसके लिए फंक्शन की मिरर इमेज लेते हैं x एक्सिस में। वी टेक द मिरर इमेज ऑफ द फंक्शन इन x एक्सिस, ठीक है। सो इसको अगर हम x एक्सिस में इमेज लेंगे तो ये सेक्शन हमें नीचे दिखेगा ऐसे, ये, और इसकी इमेज लेंगे ये ऊपर दिखेगा हमें ऐसे, ये। इसको यहां से हटा देंगे। अब जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ है, -1 अपॉन x -1 का। ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन थी, तो x इक्वल टू 0 कहां पे आएगा, लेफ्ट में। तो यहां पे हमें लाइन ड्रॉ कर देंगे x इक्वल टू 0, ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी, और ये x एक्सिस हो गई इधर। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0। अब देखो x को 0 रखने पे -1 अपॉन -1 मतलब 1 आएगा ना, तो ये पॉइंट 0 Yes, sir. 1 हो गया। क्लियर? Yes, sir. ये ग्राफ बनेगा आपका। अब अपने ग्राफ को इससे कंपेयर करके जरा देखो, क्या आपने Yes, sir. सही बनाया है? गलत था सर। सर आपने ना ग्राफ जो दिया था -1 अपॉन 1 minus x दिया था सर। -1 अपॉन x -1। सर एक मिनट मैं देखता हूँ अपनी नोट्स में। -1 अपॉन x -1, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व की, दैट इज करेक्ट, ओके सर। ठीक है। उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपने सही आंसर किया। देन रैंडम वेरिएबल, तो देखो रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये टॉपिक भी आपको रेडी करने हैं अपने, ओके सर। ओके। यस सर। तो
टॉपिक्स पे भी कमांड करनी है अच्छी। ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट रैंडम वेरिएबल को मैं बता देता हूँ। ए रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन और रूल which assigns a unique real number to every sample point of a sample space। एक रूल होता है जो सैंपल स्पेस के हर एक सैंपल पॉइंट को एक रियल वैल्यू असाइन करता है। उस रूल को हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। वो फंक्शन की तरह काम करता है एक्चुअल में। ठीक है सर। तो इतनी डेफिनेशन आपको वहां पे बतानी है। अब इफ दे आस्क यू अबाउट रैंडम वेरिएबल, डिटेल्ड में टॉपिक आपको प्रिपेयर करना चाहिए, मेरा सजेशन। ठीक है, रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ, पीएमएफ और जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपसे वो पूछ सकते हैं, प्रिपेयर करने हैं आपको। यस सर। ओके, देन उसके बाद एलिप्स आपने बना दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस, ये वाला आपका ठीक है एलिप्स। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि आपसे मैंने पूछा लेटेस्ट रेक्टम, आपने कहा कि सर फोकस के परपेंडिकुलर होगी। अरे फोकस एक पॉइंट है, फोकस इज ए पॉइंट, पॉइंट के परपेंडिकुलर थोड़ी कुछ होता है। यस सर। परपेंडिकुलर तो लाइन के होगा ना, पॉइंट के परपेंडिकुलर तुम कितनी लाइन ड्रॉ करोगे? हर एक लाइन जो उससे गुजरेगी वो परपेंडिकुलर ही है। तो गलत सेंटेंस आपने यूज किया वहां पे। मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर पास होती हुई फोकस से, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग टू द फोकस। ओके, वो हम बोल सकते हैं, दैट इज करेक्ट। बट फोकस के परपेंडिकुलर तो कोई सेंस नहीं बनता ना, फोकस तो एक पॉइंट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, तो वो भी आपने सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं, मतलब आपने बताया है बट सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा आपका वो। देखो आपको क्या करना है कि एक तरफ आपका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यस सर। the opposite side you have a function of independent variables x and y. So in this case you can just integrate both sides. Yes sir. In LHS our derivative is with respect to both x and y, so we have to integrate with respect to x and y separately. First with respect to any one variable and then with respect to another variable. Yes sir. Any order we can use. Yes sir. So suppose we are differentiating, we are integrating actually, no differences, we have to integrate both sides. So suppose we integrate with respect to y, treating x as a constant. Okay sir. Okay, first we integrate with respect to y, treating x as a constant. So this curl square z upon curl x curl y becomes curl z upon curl x. Yes sir. Or equal to x constant है, so xy minus y square upon 2 or plus in place of arbitrary constant we will add arbitrary function of the variable x which was assumed to be constant, so w1 x. ठीक है सर। And then we will integrate with respect to y, treating x as a constant in the second step. Yes sir. We get z equal to then, ठीक है। अब x के रेस्पेक्ट में कर दो इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट मान के, तो w1x जो था इनटू में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और प्लस फिर एक और आर्बिट्री फंक्शन आएगा, दैट विल बी फंक्शन ऑफ y दिस टाइम, क्योंकि y को कांस्टेंट माना हुआ है ना, तो वहां पे कांस्टेंट की जगह y का कोई भी फंक्शन आ सकता है, w2y का नाम दे सकते हैं उसको। यस सर, यस सर। क्लियर? क्लियर सर। देन लास्ट क्वेश्चन जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ये आपने 4 कंप्यूट किया है, तो ये आपका आंसर जो है 4 हाफ इंटू 4 इंटू 2, ये ठीक है, करेक्ट आंसर है 4 यूनिट्स। एवरीथिंग क्लियर? यस सर। सो सिविल से हो, सजेशन ये है कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैट्रिसेस, ग्राफ्स, कैलकुलस के बारे में सारा, ठीक है, और ये 3 टॉपिक पढ़ो और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ो, रैंडम वेरिएबल पढ़ो, ये मेन टॉपिक रहेंगे। ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। एक चीज पूछनी है सर, फिर से स्नैप हो सकता है, मतलब 1-2 दिन बाद प्रैक्टिस करके? हाँ कर लो, कोई नहीं, फिर बता देना मुझे। ओके सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर।